Good morning, everybody. Good morning. I just wanted to introduce our very precious and prestigious doctor. My name Dr. Shashi Kant, MBBS and MD. Very much what you call he has got lot of experience, and he is very much specialized in acupuncture and Ayurveda. So we are very happy to welcome him to our Divine Grace family. He is going to join us, and once in a way he also will come and take class for you. He is very much interested to take classes. He goes outside countries to take class. So such a genius personality, and we are very happy to have him in our Divine Grace family. Please give him an applause. So sir, heartfelt welcome to you. Thank you. How much time I have? So I'm just recording. Are you, any one of you from boys side, are you good at camera? Video recording, anything? Anybody good at? Somebody can come in front, and if you want to record some of the content, you can record. Already this audio is connected to my camera. It will be good audio. No problem. No, that one let it be. That let it be. I'll get a clear audio from this, but you get from your camera. I want one. Okay, I want to hear from you. Usually I want to know all of your name, but time will be very short for me, and I want to hear maybe some 5 interest, why you joined and what you want to do, from 5 people. Any one of you volunteer, you can raise your hand, just to build a communication between us, because you are meeting a new person whom you don't know, and I don't know you. Is it not? In due course of time, you can come here with your elbow as a tripod. No, not now. During any important like 1 minute, 2 minutes, you record. Not continuous. It's there. No worries. Okay, raise your hand. Why you came here? What you want to do? Are you okay with English? Yes, sir. All of you? So you can answer me. I came here for doing my nursing course because in nursing there are lots of opportunities are there in the field of nursing. That's why I came. GNM, BSc. GNM. No, better. Anyone? Yeah. Abroad. You want to serve here, but you want to go abroad. So there is opportunity plus service. Both motive is there. No problem. Anybody else? Yeah. I chose this GNM nursing. This nursing is like it's my dream since childhood, and I want to fulfill it. Good. India is the biggest exporter for doctors and nursing staff worldwide. You know, so you have a lot of opportunity. GNM is a very interesting course which is neither too long like BSc nursing or too short like any 1 year diploma, which will not be valid outside India. GNM is valid. Okay. So Indian healthcare scenario is different. I'll take little extra time. How much time you want to give me?
See, there is something called as monologue. Dialogue you heard. Dialogue is interaction between two people. Monologue is I am speaking, you are listening. So after 15 minutes, you'll get a feeling of tiredness, boredom, yawning, everything you'll get. So let it be more of dialogue rather than monologue. So that's what I'm asking you questions. So this is an ex-tempo class which I'm not prepared, but I have some content for you which is very good for you. Okay. So in Indian healthcare scenario, the statistics may vary. 75% of Indian healthcare is privatized. Okay. It means whenever we go to any doctor, we give out of our pocket, money spent will be 75%. So that's a good and bad. Why it is good, why it is bad, I'll tell you. So most of them, whatever you include, whatever big names of the hospital, wherever you get to know, it is all privatized. So in India, there are other system called as Ayush. You heard of this? Ayurveda? Yeah. Yeah. These are Ayush doctors. Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, Homeopathy. There are about 778,000 plus or minus doctors of Ayush. In India, 75% of healthcare is privatized. Ayush doctors, there are 778,000 plus Ayurveda doctors are there. Nursing staff, I don't have the statistics right away, but I'll share it with you later. 72% of rural population. Like you are in Kitagnur. Kitagnur is a rural area, but it is a urban, semi-urban area. It is not neither like a MG Road, Bangalore, nor even though it is a Bangalore, but it is a rural Bangalore. So 72% of rural population, 79% of urban population. Anywhere, when you are telling about opportunity, you came from very remote village, is it not? You do not have so many opportunities in the village side. Do we have? When you complete your GNM, do you want to go back to your village and serve? Usually yes or no? Usually no, because we don't have opportunities. Even if there is opportunity, you don't have that pay scale. So 79% of urban population, 72% of rural population wants allopathy. So GNM people, are you following allopathy? Are you following Ayurveda? Are you following Unani, Siddha, Homeopathy? What you are following? Usually you are following allopathy. So this is a popular science. But popularity of this has made Ayush doctors also more than 85% of Ayurveda doctors, more than all the Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, Homeopathy people are practicing allopathy. So whenever you are working with any clinic, you do not know is that person is Ayurveda, Homeopathy, Unani, you do not know. You know that he is a doctor, that's all. So your skills should be so much qualified, so much authentic that you can even surpass the qualities of a doctor in the giving IV fluids, giving intramuscular injections, giving what dosage, everything should. Before you give even 0.5 ml of injection, read about it. Is first rule. Any injection you are giving anywhere in the world, even you are practicing anywhere, anything major happens to the patient when you give injection suddenly, then it is your responsibility. Actually, it is the head of the particular hospital's responsibility, but still you should hold the responsibility that you take care what you are giving. If you are giving diazepam, azithromycin, whatever injections you are giving, you should be careful to read about the content and possible side effects. Only when you notice the side effect, then only you are going to inform the doctors, is it not? So what I said, rural, urban, 79, 72, they want allopathy, and around more than 85% of doctors are practicing allopathy only. So we have a unusual combination of healthcare which is little different from other country. Other country we don't have Ayush system as such, is it not? So
this was my interest. Why I was studying all these years, it was my interest, and there is a good system of combination. This you can take. Conventional medicine, that is allopathy. Complementary alternative medicine. So conventional medicine is popular science. Whatever everybody is following is allopathy. Allopathy system considers like this. And whatever is an alternative, Unani, Siddha, homeopathy, whatever you see, somebody gives Nati medicine, something, whatever, those things will come under complementary. In India, there is lot of chaos because it is unstructured. Every Ayush doctor says, I am a big doctor, I want to cure cancer, I want to do this, that. You will hear some of the gurus or pastors, Baba saying all this. You should be careful to meticulously choose the middle path. This is called as integrative medicine. Integrative medicine. Why I am using this word is you are getting trained not only for the GNM but also for the integration. Along with the intramuscular injection, along with IV, you are also learning something extra, which will give you an edge over other GNM nursing staff. Is it not? So, because of that, you need to know. When I say integrative medicine is a branch of allopathy which deals with evidence-based therapies. Evidence-based therapies means any therapies. For example, I'll take an epilepsy patient. Epilepsy, conventional medicines, you are taking tablets, you are taking whatever surgery you want to take, you are taking that. Along with that, there are so many other options. I have some Ayurveda medicines, I have some homeopathy medicines, I have some medicines. I cannot keep trying everything by myself. Then it will become alternative. Alternative is mainly usually popularized is anti-allopathy propaganda. Usually I'll say, okay, I'll cure cancer. Take this medicine. I'll give you. Will you take it? Will you take it? You will not take it, but the patient who is suffering, who doesn't know that what is the future for the patient, I don't know how many years I am going to live with this condition, with this allopathy, they want to try. Is it not? In that trial, they spend a lot of money. So whenever you see any alternative medical system, they do a lot of claims. Fake promises and hope selling. Never involve yourself in any hope selling. Never interact with the patient with all the details. What you know about the patient, don't tell to the patient. Unless the doctor is asking you to do not share any vital information about the patient. For example, patient is in the final stage of cancer. You are going to give injection to the patient and say, oh, so you are going to die soon because you are in final stage. Patient will die fast. So you should not reveal anything about the patient to the patient or the relatives unless the doctor is approving or unless. So that is called as a professional secrecy. Professional secrecy. So even any personal information of the husband, you should not reveal to the wife of the same family without the consent of the husband. Any information of the wife is your patient, for example. You should not reveal about that particular patient to the relatives without the proper consent of the patient. Proper means written, signatured consent. So what I mean to say is you should never discuss anything about the patient problems to the patient in person, because you are going to spend a lot of time with the patient than the doctor. Doctor will come, he will write the medicine 1, 2, 3, 4, you injections you give this much this morning, evening time. You know how to write the notes of the nursing notes, you know, no? पता है ना? Temperature आज temperature इतना है, BP इतना है, patient का pain abdomen था. Hindi, how many people speak Hindi? Most of, हाँ? Majority are Hindi, ठीक है. तो ये वाला इम्पॉर्टेंट है, प्रोफेशनल सीक्रेसी मेंटेन करना है
होप सेल नहीं करना है, अरे वहाँ पे एक डॉक्टर है, आ जाओ उधर, मैं मेडिसिन दिला दूंगा आपको, ये वाला बंद कर दो. Not to. No, don't get involved in any anti-allopathy propaganda anytime in your life for your better future. Okay. So this is a small, idea what is happening in the world. So alternative medicine में everybody is not bad. So everybody don't sell hope. So hope in the sense, oh, you are having 3rd stage, 4th stage cancer. Come to us. I'll give you some jadi booty. You'll get cured totally. So that is called as hope selling. Allopathy, whatever cancer treatment, surgery, chemotherapy, radiotherapy they are taking, they'll take. But if they go for this, patient doesn't know. Patient will go for, अरे मुझे तो कुछ तो बेनिफिट होगा, थोड़ा तो पैसा खर्च करके ले लेंगे. तो वहाँ पे होप फेक है. फेक क्यों है? रिसर्च एविडेंसेस नहीं है. जहाँ पे रिसर्च एविडेंसेस है वो वाला इंटीग्रेशन, उसमें मेरा स्पेशलिटी. समझ रहे? यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ना व्हाट आई एम अप टू. मेरा एलोपैथी का डॉक्टर है, बेसिक डिग्री MBBS है. इसके बाद में मैंने MD योगा एंड रिहैबिलिटेशन किया, और उसके बाद में MSc अप्लाइड साइकोलॉजी किया. और मैं बहुत ज़्यादा घूमता हूँ. चाइना मैंने जाके मैंने एक्यूपंक्चर सीखा है, मॉक्सीबस्टन सीखा है. यहाँ पे एक आयुष डिपार्टमेंट है मैजेस्टिक के अपोजिट में, देखा है आपने? बेंगलुरु का ये बहुत बड़ा आयुष डिपार्टमेंट है, मैजेस्टिक बस स्टॉप के अपोजिट में ही है. तो वहाँ पे कभी आपको लेके जाऊँगा. आई टेक यू समटाइम देयर. आई ट्रेन माई एलोपैथी आयुर्वेदा पंचकर्मा थेरेपी इज देयर. सो व्हाट आई मीन टू से इज, ये जो जगह है ना, यहाँ पे क्लेम्स नहीं आता है, फेक न्यूज़ नहीं आता है, फेक बाबागिरी नहीं आता है. यहाँ पे एंटी एलोपैथी प्रोपेगेंडा नहीं आता है. यहाँ पे क्या आता है, एलोपैथी का जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, जो भी डॉक्टर से ले रहे हो, आप ले लो. उसके साथ में आपका डॉक्टर का परमिशन है तो थोड़ा हम लोग कोई टर्मरिक का कुछ दे दिया, कुछ जिंजर का कुछ दे दिया, समथिंग विल गिव. थोड़ा रिलैक्सेशन टेक्निक सीख लिया. सो समथिंग विल गिव विच विल हेल्प द पेशेंट इन बेटर रिकवरी. उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटिव मेडिसिन. ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे हमारा जो आपका जो GNM चल रहा है, ये एलोपैथी के साइड बाय साइड चलेगा. कन्वेंशनल में आपको क्या क्या सीखना है, ड्रेसिंग कैसे करना है, पट्टी कैसे लगाना है, स्टिकरिंग कैसे करना है, सूचर को डालना कैसे है. बहुत ज़्यादा लोग पेशेंट आ रहे तो आपको सूचर डालना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल एक बोरिंग हॉस्पिटल में जब मैं काम कर रहा था, एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, उसमें 40 लोग थे. 40 लोग एकदम से ऐसे रूम में पड़े हैं. जिसको सीरियस है वो बड़ा डॉक्टर देखेगा, जिसको लेस सीरियस है, पैर में कहीं पे कटा, टाका लगाने के लिए अब सब लोगों का एकदम से आप हेल्प करना है. उस टाइम पे हम लोग नहीं बोल सकते कि मुझे पता नहीं है ना. तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग. एलोपैथी वो है कन्वेंशनल प्रैक्टिस. एट द सेम टाइम पेशेंट केयर में आप थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हो. मैं दूसरे GNM लोगों से आपको क्यों लो? एग्जाम्पल, आपका क्या एज है? एज क्या है आपका? GNM तो सर्टिफिकेट सबको मिलेगा. आपका एज क्या है? आपका एज है कि आपका सम अमाउंट ऑफ इंटीग्रेटिव थेरेपीज, थोड़ा बहुत मसाज का आ गया, थोड़ा बहुत आयुर्वेदिक का ऑयल का एप्लीकेशन आपको आएगा, थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन टेक्निक सीखने के लिए आप बोलोगे, थोड़ा डीप ब्रीदिंग का टेक्निक बोलोगे. पेशेंट को हर टाइम पे इंजेक्शन दे के चलाने का ही नहीं है. थोड़ा रीएश्योरेंस करोगे आप, हाँ ऐसे करो, कल सुबह डॉक्टर आके देखेगा, कल परसों आपका ऑपरेशन है, इसका सब ठीक हो जाएगा, आप रिलैक्स रहो. इतना बोल दिया तो पेशेंट आपके साथ कनेक्ट होगा. इज अ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. आप बात करने का इंपॉर्टेंस नहीं है, आप कनेक्ट हो जाओगे. कनेक्ट हो गए तो मुझे वही नर्स चाहिए, वो मेरा थोड़ा अच्छा देखभाल करता है. तो ऐसे आपका क्रेडिबिलिटी और आपका एज ज़्यादा होगा हमेशा. इतने लोगों में किसका एज ज़्यादा होगा? जिसका ह्यूमैनिटेरियन, जो सोलफुली अच्छा बात करते हैं, जिसका आई कांटेक्ट ठीक है, स्टेयरिंग ऐसे स्टेयर करना नहीं, कंपैशनेट, थोड़ा ऐसे मन में थोड़ा. आप अपने भाइया को, अपने मम्मी को ऐसे कैसे देखते हो? कुछ तकलीफ में है तो आप कैसे देखते हो? आप देखते हो विथ अ मदर्स हार्ट. ये रहना है. मदर हार्ट में अनकंडीशनल लव रहेगा. इसके बारे में पढ़ना आप, अनकंडीशनल लव. तो हर एक पेशेंट को आप देख रहे हो, बहुत कंपैशन. आप कहीं पे हॉस्पिटल का लिखा होगा, XYZ हॉस्पिटल, कंपैशनेट अफोर्डेबल केयर सर्विसेज, देखा होगा कहीं पे. वो कंपैशन जब भी आएगा, आपके हार्ट, बॉडी, माइंड, स्पिरिट, 3 अलग अलग है. हम लोग जो भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बॉडी का पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग. माइंड का, इमोशंस का क्या?
आप कहीं पे खुशी में है, सोचो आपका कोई शादी वादी हो रहा है, आपका कहीं घर में कुछ है, आपको लॉटरी लग गया, लेकिन आपका सामने वाला पेशेंट अभी मर रहा है, तो अब मैं खुशी जताऊँ क्या मैं दुख जताऊँ? क्या करना है? व्हाट टू डू? सो आई हैव टू स्टेबलाइज माई इमोशंस, माई बॉडी माइंड बॉडी स्पिरिट, मुझे सीखना पड़ेगा। नहीं तो मेरा अपने खुशी में मैं मेहंदी वेंदी दिखा के मैं पेशेंट के सामने हंस दूंगा, तो पेशेंट वहीं के मर जाएगा, है ना? तो यू शुड हैव अ कंट्रोल ऑफ बॉडी माइंड स्पिरिट। फॉर दैट यू नीड टू प्रैक्टिस वट एवर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस यू आर डूइंग, यू डू इट। Mind control, how can you control your anger, how can you control your emotions, how can you control your happiness, how can you control your sadness? आपके घर में किसी को कैंसर है, वो पेशेंट का कल परसों में छुट्टी है और उसका शादी है, पेशेंट इज़ वेरी हैप्पी, आप उसके सामने हाँ ऐसे में पूरा डल होके हाँ इंजेक्शन देना है सेलिब्रेट नहीं होगा। तो आपको नाटक करना है, नाटक करो इनिशियली, लेकिन आपका बॉडी माइंड स्पिरिट तीनों अच्छा रहना है और पेशेंट के साथ अच्छा बर्ताव करना है, उससे आपका एज आएगा। क्या है? एज। सो जीएनएम में प्लस एज, आपको थोड़ा डिफरेंट रहना है लोगों से। इंटरेस्टिंग है ना? यहाँ पे ह्यूमन इमोशंस का बहुत वैल्यू है। जैसे आप ड्रामा स्कूल में ड्रामा सीखते हो, यहाँ पे भी थोड़ा ड्रामा रहता है कि आप अपना पर्सनल इमोशंस जो भी हो, वट एवर इज योर पर्सनल इमोशंस, यू नीड टू गिव योर 100% टू द पेशेंट अनकंडीशनली एज अ मदर। मदर कुछ एक्सपेक्टेशन करके करता है क्या? हाँ सर आपको मैं 200 रुपये टिप्स दूंगा, हाँ तभी मैं खुश होकर मैं 3 इंजेक्शन करेक्ट टाइम टू टाइम इंजेक्शन लगाऊंगा, ऐसा नहीं है। आपका जो टाइम है, डॉक्टर ने कितना टाइम बताया, 8 PM का टाइम पे इंजेक्शन है, तो उस टाइम पे जाना है, 8 PM को ही लगाना है, स्लोली लगाना है। अब वो क्या मेडिसिन है पढ़ना है, इंस्ट्रक्शंस, उसका साइड इफेक्ट, पॉसिबल साइड इफेक्ट क्या है पढ़ना है, आपके सीनियर्स को बताना है, देन गिव इंजेक्शन। हाँ मुझे सब पता है बोल के नहीं देना, ठीक है? तो थोड़ा मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया, तो आपको इतना समझ में आ गया तो मेरा काफ़ी है कि इंटीग्रेटिव मेडिसिन क्या है। आपका जीएनएम में थोड़ा एज चाहिए, इतना समझ में आ गया तो बस है ना? इंटीग्रेटिव मेडिसिन क्या है? इंटीग्रेटिव मेडिसिन एलोपैथी का एक ब्रांच है जिसमें एविडेंस बेस है, ये इंपॉर्टेंट है। एविडेंस बेस, इसका एक फोटो निकालना है, निकालो। एविडेंस बेस्ड टर्मरिक आपको हेल्प करेगा, रिसर्च एविडेंस है। टर्मरिक को एंटी इन्फ्लामेटरी, गाउट का रिलेटेड में हेल्प करेगा, आर्थराइटिस में हेल्प करेगा, अस्थमा में हेल्प करेगा, वहाँ पे रिसर्च है। कितना डोज देना है, कितना देना, वो आपका दूसरा डॉक्टर डिसाइड करेगा। लेकिन हम लोग फेक होप सेल नहीं करना है, फेक क्लेम नहीं करना है, और पूरा झूठ मूठ का हम लोग क्लेम नहीं करना है, प्रिटेंड नहीं करना है। वहाँ पे आपको बेटर एज रहेगा कंपेयर टू अदर पीपल अमंगस्ट योर सेल्फ। आपके साथ भी अपने इतने साथियों में कोई एक अच्छा रहेगा कि सब लोग सेम ही रहेंगे? हम लोग मोबाइल के जैसे नहीं है, ऐसे प्रोडक्ट के जैसे नहीं है कि ये सब प्रोडक्ट एक ही रहेगा, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है। ये आयुष का हो गया, तो आप पढ़ाई करने के बाद में आयुष डॉक्टर के पास 7 वर्कर है तो उनके साथ भी एडजस्ट करना है। मैं एडजस्ट नहीं करना है ऐसा नहीं बोलूँगा, आपका जॉब चला जाएगा, लेकिन वो देख के करना है मेडिसिन क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, उसको थोड़ा केयरफुली हैंडल करना है। ठीक है, अभी इस टाइम तक आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो मुझे पूछना है, नींद आ रहा है तो भी बताना है, ठीक है? अब सब लोग हाथ रेस करो। ओके, आपका थंब देखो, थंब को उतना ही मूव करो, बाकी अदर फिंगर्स मूव नहीं करना है। डोंट मूव अदर फिंगर्स, ओनली मूव द थंब। हो रहा है? यू एबल टू डू? ओके, नाउ यू मूव द लिटिल फिंगर विदाउट मूविंग अदर फिंगर्स। हो रहा है? कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को नहीं हो रहा है, ठीक है? अभी छोड़ दो, पैर को आगे करो, सेकेंड टो को मूव करो विदाउट मूविंग द अदर टोज। होगा क्या? है गुंडू? मोका अल्ले मोका
हो रहा है क्या? क्यों नहीं होगा? किसका हो रहा है? इधर आ जाओ। हो रहा है। दूसरे टोस मूव नहीं होना है। जैसे आप ऐसे मूव करते हो, इसको मैं मूव नहीं कर रहा हूँ, आप वो टोस को हिला रहे हो तो ये भी मूव करेगा उसके साथ। तो ये तो फिंगर्स है, टोस का बता रहा हूँ। करो। हमारे बॉडी में भी डिफरेंस है। कम आप डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। You can move the toe without moving other fingers. Putum. Putum. ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕೊಂಬಿಡಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊ मैडम पे देखो। हाँ कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे। तो हमारे बॉडी में ही डिफरेंस है। नंबर ऑफ रिसेप्टर्स आर मैक्सिमम इन योर हैंड कंपेयर टू एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। हैंड्स जहाँ पे हीलिंग करते हैं, फेस के बाद में हैंड्स आर यूज्ड मैक्सिमम फॉर कम्युनिकेशन। मैं किसी को बोलूँगा, क्या कर रहा हूँ मैं तो बोल नहीं रहा हूँ ना। तो फेस के बाद में हैंड इज यूज्ड सेकेंड पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज़ यूज्ड मैक्सिमम फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, हीलिंग, जो भी आपका स्किल है, हैंड से जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ब्रेन में मेमोरी के जैसा जाएगा। तो वेस्ट इंजेक्शन विदाउट सिरिंज प्रैक्टिस करना है ज़ोर से ऐसे। आपका तो अभी सिरिंज कहीं पे पड़ा होगा, सिरिंज है, उसको आप प्रैक्टिस करना है। हाथ को कितना ज़्यादा आप एफर्ट्स देते हो उतना आपका स्किल बढ़ेगा। पेशेंट के ऊपर लगाने के बाद में पहले प्रैक्टिस करना है। तो कहीं पे आपने देखा है कि किसी का हाथ, दोनों हाथ नहीं है लेकिन वो पैर से ड्राइंग कर रहे हैं, पैर से एग्जाम लिख रहे हैं, देखा है? दैट विल हैपन ओनली बाय ट्रेनिंग एंड द स्किल। हाथ में फाइन मोटर स्किल्स ज़्यादा है। आपका जो भी जीएनए में जो भी आप सीख रहे हो, ब्रेन का कोऑर्डिनेशन, इमोशंस का स्टेबलाइजेशन और हाथ का कमाल। कोई मैजिशियन है तो वो ऐसे ऐसे करता रहेगा, मैजिशियन है तो ऐसे करता रहे, खेलता रहेगा ऐसे। मुझे तो नहीं आता है, ऐसे करते हैं ना मैजिशियन। कोई करता है? एनी वन ऑफ बॉयज यू डू? पेन को ऐसे घुमाने दिखाओ, ऐसे कोई करता है? आता है? करो, देखो। उसको ऐसे रोटेट करो, ऐसे नहीं है? तो ये सारा चीज़ जैसे मैजिशियन रहता है वैसे आप सीखना है। ये वाला कर सकते हैं। एक मगेल खुद को यहाँ पे कोई बच्चा अटेंशन सीख कर रहा है तो उसको ऐसे बिठा के हेमिस्फेरिकल सिंक्रोनाइजेशन। मग कुछ मग किसी का पढ़ाई का नहीं हो रहा है, आपको किसी का नींद ज़्यादा आ रहा है, किसी को स्मोकिंग का लत लगा है, किसी को लगा है? इधर लगा है? मैं किसको लगा है भी, मैं 10 डेज में टाइम स्पेंड किया तो मैं बता सकता हूँ कौन एंग्जाइटी में है, कौन डिप्रेशन में है, कौन घर को मिस कर रहा है, कौन किसका फाइनेंशियल ट्रबल ज़्यादा है, कौन स्मोक कर रहा है, मैं बता सकता हूँ आपको। ठीक है? तो आपका हाथ का कमाल, नॉलेज और आपका इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है सब जगह पे, है ना? तो जो भी आप कर रहे हो, कितना भी आप हिम्मत हो, तो उसके लिए मैं ट्रिक्स भी बता दूंगा। ऐसा करो, हाथ को ऐसा करो, ऐसा कर सकते हो। तो इसका आपका ब्रेन
बोथ राइट एंड लेफ्ट ब्रेन दोनों साइमल्टेनियसली वर्क कर रहा है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, और दोनों हाथ से लिख सकते हैं आप, उसका प्रैक्टिस करना है। फाइन मोटर्स के लिए, फाइन मोटर एक्टिविटी, इसको आप लिख लो, इसको फोटो मार लो। फाइन मोटर स्किल्स, आपका हाथ का फाइन मोटर स्किल्स को बढ़ाना है, स्टिचिंग डालना है, स्टिचिंग डालो, पहले बॉडी पे नहीं, पहले आपको घर में कुछ आपका हॉस्टल में कुछ आपका कपड़ा वपड़ा सिलाई के उसको स्टिच करो। मेडिकल का स्टिचिंग आता है, सिंपल सूचर्स आता है, सबक्यूटिनियस सूचर्स आता है। मग ಎಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳು. he'll sleep off मकुतन। इंटरेस्टिंग लगा नहीं लगा? तो हम ये मैं इसका प्रोडक्ट का बोला, किसी को ज़्यादा मस्ती चढ़ा है तो उसको एक्यूपंक्चर भी दे सकते हैं हम लोग। मस्ती करना है, एक्यूपंक्चर लगा के दिखाऊंगा आपको कैसे फील हो रहा है। तो देखो, कोई भी प्रोडक्ट है, सोचो हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है, हर एक प्रोडक्शन हाउस में हम लोग अच्छा सा प्रोडक्शन करना है। वैसे ही हमारा एजुकेशन कैसा है, अभी एजुकेशन पूरा यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था कुछ सालों पहले। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो मेडिकल में भी आ गया, एजुकेशन में भी आ गया। कैसा है, एक मंथ एंड में, एक ईयर एंड में कितना जीएनएम स्टूडेंट्स को आप प्रोड्यूस करते हो। जैसे कि इक्विपमेंट है, कुछ भी इक्विपमेंट है, कैमरा है, मोबाइल का कोई भी आप ब्रांड बोलो, वो ब्रांड का कितने लोग आते हैं। तो वैसे ही आपका एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा बन गया है कि एजुकेशन सिस्टम का पार्ट ऑफ प्रोडक्शन हाउस के हिसाब से नंबर्स में काउंट होगा, क्वालिटी में नहीं। समझ रहे? 70 जीएनएम स्टूडेंट्स में कौन क्या कर रहा है, कौन क्वालिटी के ऊपर ध्यान दे रहा है, कौन अपना स्किल के ऊपर ध्यान दे रहा है, कौन अपना बॉडी माइंड को बैलेंस कर रहा है, कौन नशा नहीं कर रहा है, कौन इमोशंस को पूरा बैलेंस कर रहा है, कौन पेशेंट का पढ़ाई ज़्यादा कर रहा है, जिसको समझ में भी नहीं आ रहा तो जो सीखने का जो चाहत रखता है वो उसका एज ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू एनीबडी एल्स। उसके हिसाब से आपका आई कांटेक्ट कैसा है, आप कैसे बात कर रहे हो, आपका वोकेबुलरी कंटेंट ऑफ द स्पीच कैसा है, आपका इमोशनल स्टेबिलिटी कैसा है, उसके हिसाब से आपका जॉब में प्रमोशन भी मिलेगा। समझ रहे हैं? तो आप प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है रादर दैन द नंबर। 70 लोग हैं, 70 लोगों में कितने लोगों को आपको क्वालिटी सीखना है, वही उसका ही एज रहेगा, उसका ही क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज होगा, उसका इमोशंस चेंज होगा, उसका अर्निंग कैपेसिटी चेंज होगा, उसका इंटरेक्शन विथ वर्ल्ड चेंज होगा। तो आपको क्या फोकस करना है, कितने नंबर्स आ रहे हैं, क्या उसके ऊपर फोकस करना है, क्या आपका क्वालिटी क्या है इस जीएनएम में। जीएनएम का कितने साल है, 2 साल है, 3 साल 3 साल में आप कितना क्वालिटी ऐड करना है वो आप सोच सकते हो। नहीं तो 3 साल में मज़ा करके आराम से मैं खा पी के वो भी आप कर सकते हैं। सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही मिलेगा, कैसे भी करके एक एग्ज़ाम आप फेल हो गए होते नेक्स्ट में भी मिल जाएगा, लेकिन क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है। क्वालिटी आपको मैं कुछ बोलूँगा, आयरन पीस है और गोल्ड है, किसका वैल्यू ज़्यादा है? क्यों? रेयरिटी, रेयर है, क्वालिटी है, प्योर है, डिमांड में है, रेयर है। तो आपका मर्सिडीज़ बेंज रेयर है, क्वालिटी ज़्यादा है। वैसे तो आप क्या बनना चाहते हो? आप मर्सिडीज़ बेंज बनना चाहते हो क्या मारुति 800 बनना चाहते हो, क्या सेकेंड हैंड कोई भी गाड़ी बनना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। आपका सर्टिफिकेट के ऊपर डिपेंड नहीं है। हमारा डिवाइन लाइफ यहाँ पे हॉस्पिटल से आप जीएनएम किए हो, आपका क्वालिटी अच्छा ही रहना ऐसा कुछ नहीं। हम लोग हमारे साइड से जो भी हम लोग एडिशनल क्वालिफिकेशन, एडिशनल स्किल्स जो भी आपको ऐड करवाना है कर लेंगे, लेकिन आप सीखने का चाहत आप में रहना है।
यू हैव टू लर्न द स्किल्स बाय योरसेल्फ. कितने लोगों में इंटरेस्ट है कि क्वालिटी बिल्ड करना है? ठीक है, तो हम लोग कुछ तो सिखा सकते हैं. कितने लोगों का इंटरेस्ट है कि सर मुझे GNM कंप्लीट करना है, जॉब में लगना है, जाना है इधर से? ज़्यादा लोग नहीं है, और है लेकिन बता नहीं रहे. ठीक है ना? बाद में अब इंडिविजुअल आप मिलेंगे तो बताएंगे. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का हिस्सा मत बनो, भीड़ में जो रैट रेस में मत दौड़ो. अपना इंडिविजुअल क्वालिटी, इंडिविजुअल जो भी आपका सिस्टम है, गोल्ड बनने का, शुद्धता, आपका क्वालिटी प्यूरिटी ज़्यादा हो रहा है तो विल बी वैल्यूड मोर. हेल्थ केयर सेक्टर में हम लोग अपना ख्याल ज़्यादा रखना है. मेरा पेट आ रहा है, मेरे पेट का ख्याल रखना है, एक्सरसाइज करना है, मेरा नींद अच्छा नहीं होता, नींद अच्छा करना है, मुझे नशा नहीं करना है. ऐसे तो क्वालिटीज़ रहेगा. लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स ही नशा करते हैं, है ना, स्मोक करते हैं, स्मोक करके ऑपरेशन के लिए जाएंगे. तो एटलीस्ट आप कुछ मत बनो. आप उतना, किसी को आई इन्फेक्शन है क्या? आई का इन्फेक्शन है? रो रहे हैं? क्या हुआ आपको? बुखार है आपको? आई इन्फेक्शन? ओके, तो मैं थोड़ा पॉज दूंगा. आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, पूछो. एक ही दिन में ज़्यादा मैं बता नहीं सकता. 15 मिनट आपका अटेंशन स्पैन 15 मिनट है. मैं 15 मिनट से ऑलरेडी बात ज़्यादा कर लिया. आपका कुछ क्वेश्चन है तो पूछो. इंटरेस्ट आ रहा है? यहाँ पे हम लोग डेवलपमेंट, इंटीग्रेटिव कॉन्सेप्ट को डेवलप करके आपको थोड़ा एक्स्ट्रा स्किल सिखाने का कोशिश कर रहे हैं. जिसको जो इंटरेस्ट है वो आके सीख सकता है. GNM को उतना ही सीखना है तो आप रेगुलर क्लासेस में जाओ. एक्स्ट्रा क्लासेस में कभी बुलाऊंगा तो आप आ जाना. जिसको मन नहीं है वो नहीं आ सकते. तो आपको मैडम यू कैन गिव देम फ्री हैंड दैट इफ समबडी इज इंटरेस्टेड जेन्युइनली दे विल कम. एक्स्ट्रा जो भी क्लास है, ठीक है, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर सीखना है, सीड थेरेपी सीखना है, कुछ और कम्युनिकेशन लेवल सीखना है, ड्रामा स्किट के जैसा सीखना है, आई कांटेक्ट का सीखना है, मेडिटेशन सीखना है, ब्रीदिंग टेक्निक सीखना है, जो भी आपका, वो आप आ सकते हो. ठीक है, मैं थोड़ा 1-2-3 मिनट पॉज दूंगा. आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो मुझे पूछो. बोलो. नहीं है? कुछ क्वेश्चन नहीं है? ये रैंडम क्लास का टेक अवे मैसेज क्या होगा बोलो. इसका आपने ऑलमोस्ट 1 आवर का कुछ लेक्चर सुना आपने. आप मैसेज क्या लेके जा रहे हो घर को? इस कंटेंट का पूरा याद रखने की ज़रूरत नहीं है. क्या ये लेके जा रहे हो? क्वालिटी, स्किल, एज, और क्वालिटी, स्किल, एज, और सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्फ केयर. हाँ, सेल्फ केयर. नशा में नहीं रहना है. अभी नशा स्टार्ट होने का यही एज है, 14 ईयर्स टू 25 ईयर्स. मैक्सिमम पीपल विल लर्न स्मोकिंग, अल्कोहल, सब कुछ इसी एज में होता है. हाँ, क्या वो बाकी मैं तो 2-3 मेंशन किया, बाकी बहुत सारा रहता है. गेम एडिक्शन, कितने लोग गेम खेलते हो मोबाइल में? आराम से बिंदास बोलो, उसमें कुछ नहीं है. कौन सा गेम खेलते हो? नो प्रॉब्लम. बॉयज़ के हिसाब से बॉयज़ लाइक्स मोर ऑफ अग्रेसिव गेम्स. शूटिंग गेम कौन ज़्यादा खेलता है? कैंडी क्रश कौन ज़्यादा खेलता है? कैंडी क्रश, फ्री फॉल, फ्री फॉल, पबजी. अभी स्ट्रैटेजी बोलता हूँ मैं, स्ट्रैटेजी ऑफ, ये वाला बताना नहीं चाहिए. USA, चाइना,
चाइना का इंडिपेंडेंस कब आया? 1949 में। इंडिया का आया 1947 में। चाइना ने नेक्स्ट 60 इयर्स क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान दिया। और यहाँ पे क्वालिटी इनका कैसा है कि आपको इनका दे दो, मे बी रशिया ऑल्सो। मैं कोई भी कंट्री के अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या रहता है, यंग जनरेशन्स को स्पॉइल करना। कैसे स्पॉइल करें? हाँ हाँ, इंडिया का मैप मुझे करना नहीं आता, छोड़ो। जो पाकिस्तान का बॉर्डर, पंजाब रिलेटेड बॉर्डर है, वहाँ पे मैक्सिमम ड्रग एडिक्शन है। अभी आप पंजाब के तरफ अब जाके आप वहाँ पे काम कर रहे हो तो आपका ड्रग्स का पेशेंट ज़्यादा मिलेगा। आईवी ये सब कहाँ से आ रहा है? टेररिज्म इट कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान के साइड में आएगा। लेकिन सॉफ्ट टेररिज्म कहाँ पे आएगा? हमको पता भी नहीं चलेगा कि हम कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कैसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमको पता भी नहीं चलेगा। पबजी वो सब गेम डिज़ाइन बाय दिस पीपल, स्ट्रैटेजी है। मे भी ये भी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फॉर्न गेम्स। दूसरा क्या बताएं? ऑनलाइन गैम्बलिंग, ये सारा इंडिया में बहुत ज़्यादा है अभी। ये दिस इज ऑल स्ट्रैटेजी ऑफ द अदर गवर्नमेंट टू स्पॉइल द यूथ। यूथ का स्पॉइल कर दे तो क्या होगा? यूथ का एनर्जी स्पॉइल कर दिया तो आपका ओल्ड एज को अभी आप केयर नहीं करोगे, आपका यंग जनरेशन को भी आप केयर नहीं करोगे, कंट्री पूरा डिस्ट्रॉय होगा अंदर से ही। बिना कुछ बॉम्ब डाले, बिना कुछ न्यूक्लियर बॉम्ब डाले, आप अपने आप हम लोग मर रहे हैं इनकी वजह से। तो वो भी आप ध्यान में रख के आपका क्वालिटी ऑफ द टाइम जो स्पेंड कर रहे हो, स्पेंड करने में कुछ नहीं है, आप ध्यान रख के स्पेंड करना। आपको कोई आपके सर के ऊपर में सीसीटीवी कैमरा रख के 24 मॉनिटर नहीं कर सकता। तो ऐसे चीज़ बता सकता हूँ कि ऐसा है, ऐसा रहता है। ऐसा हम लोग इंटर कॉन्टिनेंटल डोमिनेंस क्या कहते हैं, 1949 में उनका हो गया फ्रीडम। तभी उनका आप विलेज साइड में भी लेके जाओ, उनका एक सिस्टम है स्काईनेट। इसको बोल के मैं बंद करता हूँ। स्काईनेट सिस्टम में आपका कोई भी गाड़ी कहीं पे भी जा रहा हो वो मॉनिटर कर सकते हैं। वो गाड़ी का प्लेट नंबर, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ है, कब रजिस्ट्रेशन हुआ है। और कहीं पे भी आप देखें तो ऐसे रोड एवरी 300 मीटर्स रोड में कैमरा रहता है। देखे होंगे बेंगलुरु में थोड़ा है, 1 2 3 रहेगा, ऐसा बड़ा वाला फ्रेम रहेगा। यहाँ पे नॉन पुलिस खड़ा नहीं रहेगा, वहाँ पे कैमरा ही देखेगा। आप सिग्नल जंप कर दिए, कैमरा कैप्चर करेगा, आपका नंबर आएगा, नंबर प्लेट से आपको 1500 जो भी है घर पहुँच जाएगा बिल। तो ऐसे चाइना में पूरा है फुल स्काईनेट। तो वो अपना यूथ को पूरा कंट्रोल करके रखें। चाइना में आप ऐसे डेमोक्रेसी मैं चाइना बहुत बार जाता हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, डेमोक्रेसी का वर्ड आप ढूंढ नहीं सकते। आप ढूंढ रहे हैं तो बार आप ढूंढ रहे हैं तो आपको पुलिस को आपको आके मिलेगा पुलिस। चाइना में इंडिया का एडवांटेज बताता हूँ, एक एग्जांपल देके मैं बंद कर देता हूँ। चाइना का प्रेसिडेंट कौन है? कुछ नाम है ना, शी जिनपिंग। तो किसी ने उसका कार्टून बनाया, उसका फेस और चार्ली चैपलिन के मूछे लगा दिया। चार्ली चैपलिन क्यों लगाया मूछे? टू काउंटर हिटलर को काउंटर करने के लिए चार्ली चैपलिन ने मूछे लगाया। उसका सॉफ्ट प्रोटेस्ट। तो शी जिनपिंग का फेस लगा के उसने एक व्यक्ति ने, चाइनीज व्यक्ति ने ऐसा मूछे बना के पब्लिश कर दिया। उसको 5 साल जेल हुआ। अभी इंडिया में आप अच्छे हो, मोदी को हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, प्रेसिडेंट को कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, उसका उतना फ्रीडम है हमको। आउटसाइड कंट्री नहीं है। तो आप कहीं पे आउटसाइड इंडिया जा रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। वेस्ट में जा रहे हो, आप मिडिल ईस्ट में जा रहे हो तो आप उसका रिलीजियस प्रैक्टिसेस को पढ़ना है, हिजाब पहनना है, वो सब पढ़ना है। आप कहीं पे और
लंदन वंदन कहीं पे जा रहे हो तो क्रिश्चियन टेक्स्ट पढ़ना है, तो आपका सारा ध्यान, आपका पढ़ाई का ध्यान के अलावा कुछ और भी ध्यान रहना है। चाइना वगैरह, चाइना रशिया में जा रहे हो तो आपका कम्युनिस्ट माइंड स्ट्रांग रहता है। वहाँ पे जहाँ पे रहते हो वहाँ का जैसा लोगों के जैसा फॉलो करना है आप, तो उसके लिए आपका कितना माइंड कंट्रोल चाहिए। मेरा एक योगा का दोस्त था चाइना में, उसने क्या किया कि कहीं पे सीरिया, कहीं पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का एक वीडियो उसको मिला, उसने दूसरे फ्रेंड को फॉरवर्ड कर दिया, बस जस्ट फॉरवर्ड कर दिया, उसका कुछ भी गलती नहीं है, तो उसको 2 years 5 months का जेल में काट के आ गया, वो इंडिया वापस आ गया, योगा टीचर। तो मैं बोल रहा हूँ बाहर का, मैं बोल रहा हूँ तो इंडिया में आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, आप फ्रीडम को कैसे यूज़ करना है आपकी मर्जी। तो ये वाला जो स्ट्रैटेजी रहता है पॉर्न का, गेम्स का, ऑनलाइन गैम्बलिंग का, आप कहीं पे भी देख लो, यूट्यूब में ओपन कर लो, आपको आएगा ड्रीम 11 ऐसे आएगा ना, कोई भी आपका हीरो जो भी हीरो है, एक्टर है, क्रिकेटर है, उनको क्या है, पेप्सी का इसको एडवर्टाइजमेंट किया तो 4 करोड़ रुपीज़ मिलेगा उनको, ऐसा करके छोड़ देना है बस। इसको करने के लिए 4 करोड़ रुपीज़ मिलेगा। हमको क्या मिलेगा, हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं बोल के वो हम लोग ड्रिंक करते हैं, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं है। कार्बोनेटेड वाटर 10 पैसा, 10 पैसे को आप 20 रुपीज़ दे रहे हो। तो ये ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि आप जहाँ पे आपका माइंड और एनर्जी कहाँ पे जा रहा है उसको ध्यान से चैनलाइज करना है। लास्ट वर्ड, एनर्जी चैनलाइज। अच्छा, आप एनर्जी चैनलाइज करें तो ही आपको पढ़ाई में कुछ रिजल्ट मिलेगा, आपका इमोशंस में कुछ रिजल्ट मिलेगा, आपका अध्यात्म में, आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में कुछ रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो हम लोग दिखावे के लिए हम लोग कर रहे हैं तो नहीं मिलेगा, क्वालिटी रहना है अंदर। ठीक है, इतना बोल के मैं स्टॉप करूँगा। आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछो, नहीं तो हम लोग विल स्टॉप द क्लास। आपको इंटरेस्ट क्रिएट हुआ तो बस है मुझे क्लास। एनी क्वेश्चंस? कुछ नहीं है? नींद आ रहा है? बोर लग रहा है? लगता है 70% पीपल आर बोर्ड। हाँ, ट्रिप के लिए ट्राई। तो कल टुमारो यू वांट टू कंटिन्यू? So now tomorrow having hands for you, right? Ma'am have explained you the things. You should put it, or you can hold it. Oh, that's okay. I'll finish. See you tomorrow.